कल मैंने ऑटो पायलट का रिवीजन ऑलरेडी करवा दिया था अलोंग विथ तुम्हारा प्री प्रोविजनिंग का व्हाइट ग्लव। हम्म, हम्म, आज हम स्टार्ट करेंगे हाइब्रिड एज्योर रेडी जॉइन। नाउ हाइब्रिड एज्योर रेडी जॉइन फॉर एग्जिस्टिंग डिवाइस जो है मतलब ऑलरेडी डोमेन जॉइन डिवाइसेस, उसका हाइब्रिड एज्योर रेडी जॉइन प्रोसेस इज डिफरेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। उसमें सिर्फ एज्योर रेडी कनेक्ट का ही तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होता है। Configure the service connection point and get your devices synced to Azure or Entra ID, and the devices become in a hybrid Azure ready join state. If you are not configuring service connection point in you're not configuring service connection point in the Azure Ready Connect configuration, then you will need to provide that information via GPO so that the devices get that SCP information and get synced to the Azure. But in case of autopilot, the device is new, so it is not domain joined. So during the provisioning from the out of the box, it needs to be domain joined. So there's Azure AD Connect is still involved in here, but there is an extra component that is involved in here, and that is the offline domain join blob connector from Intune that you have to set up in your environment. uh, that ODJ server must have it must be a member server of the domain and should have access to the domain controller as well. Means line of sight and have the proper permission set to create device object in the OU that you want. And rest of the configuration is same. You create the autopilot profile, deploy it. What happens is this is the device. Um, it gets connected to the network, so it will start the autopilot check. Now the device will already have a device object in Azure already created because of the autopilot registration, to which we will have the autopilot profile from Intune uh, targeted, right? Uh, yes. Once this is there, so the autopilot check returns true. The profile will be downloaded, and that configuration that is provided in the profile will be used to drive the rest of the out of box configuration. That is as usual autopilot. We get the custom branded sign in screen where the user will need to do a sign in. So this sign in, this is the first sign in. This is obviously going to Azure AD, and Azure will provide the access token. But from here on, the process will change. After acquiring the access token for a Azure AD join or a cloud only autopilot scenario, the device would do a Azure AD join and then do a MDM enrollment. But in this case, the device won't go ahead for to do a Azure AD join. Instead, it will do a MDM discovery and it will do a MDM enrollment. And why does the MDM enrollment? So this is a MDM only enrollment it is doing to the device, again using the fake account, and this is just for the purpose to request the ODJ blob, offline domain join blob that we have configured. So Intune using the connector will uh, get the offline domain join blob from your on-premises AD, and another device object will now get created in your AD, which is because of this ODJ request. Once that device object is created, Intune will send the offline domain join blob back to the device, which the device will apply and go to the ESP. It will actually reboot and then go to the ESP, complete the device setup phase, and then reach out to the Windows login screen. But either way, the main thing is that autopilot registration के लिए we already had a device object in Azure, correct?
Yes. Yes. और ये ऑफलाइन डोमेन जो है ब्लॉब रिक्वेस्ट के लिए दे आर गॉट अ न्यू डिवाइस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन योर ऑन प्रेमाइसेस एडी. This device object will be synced by Azure AD Connect to your Azure. So तुमको Azure AD पे for a hybrid Azure AD device join hybrid Azure AD domain join device के लिए you get two device object in Azure. One is AADJ record जो कि autopilot registration के लिए create होता है, and one is the HAADJ record जो तुम्हारा Azure AD Connect बनाता है. Now okay. ये जब मैं बोल रहा हूँ कि Azure AD Connect बन रहा है, so it's not in every scenario that Azure AD Connect only creates the hybrid Azure AD joint device object. For a managed domain, Azure AD Connect does that. If your domain is federated, means it is using ADFS, then the syncing of the on-premises device object to the cloud is done via ADFS and not via Azure AD Connect. ठीक है? We are considering it as a managed domain. And in managed domain, we have Azure AD Connect doing the sync. Okay. So this device object that gets created in the domain, again, I've written in here. This device is not subjected to AAD Connect sync unless it has some required attribute set. तो वो अलग parallel process जाएगा. But if we look into this, so ये जो sign in screen है, अभी जो तुमको Windows का sign in screen मिला इस stage पे, इधर पे जो साइन इन करोगे दैट साइन इन इज टू योर विंडोज डोमेन. दैट इज व्हाई इफ द डिवाइस इज नॉट इन द कॉर्पोरेट नेटवर्क यू नीड अ वीपीएन कनेक्शन इनेबल्ड इन हियर, नहीं तो वो लाइन ऑफ साइट नहीं आएगा. बट अगेन एज आई सेड कि वो डिवाइस ऑब्जेक्ट तब तक सिंक नहीं होता जब तक उसका कुछ एट्रीब्यूट्स सेट नहीं होता. तो व्हेन यू गेट द विंडोज लॉगिन स्क्रीन, by that time if the device object has not synced और तुमने sign in कर लिया, then your device will not get the PRT क्योंकि डिवाइस का Azure पे कोई एग्जिस्टेंस है नहीं. फॉर द सिंपल फैक्ट, तो वो जो डिवाइस तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो एडी पे क्रिएट हुआ वो क्रिएट होने के बाद सिंक होने के बीच में वो जो मैं बोल रहा हूँ इट नीड सम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स टू बी सेट, वो क्या है? वो प्रोसेस एक दूसरा प्रोसेस है जो एसिंक्रोनसली इसके साथ चलता है. इट्स नॉट अ सिंक्रोनस प्रोसेस, इट्स एसिंक्रोनस प्रोसेस. तो उसमें क्या है, इंट्यून से जब वो ऑफलाइन डोमेन जॉइन ब्लॉब क्रिएट का रिक्वेस्ट गया, तो इंट्यून क्रिएट्स द डिवाइस ऑब्जेक्ट इन एडी, एक डिवाइस ऑब्जेक्ट बना. Now this device object does not get syncs to Azure AD instantly. ये नहीं होता है, जैसे कि मैंने बोला it needs some attributes to be set. So what is that particular attribute of that device object? It's the user certificate property of the device object. तो जब तक वो user certificate property of the device object does not gets populated or updated, Azure AD Sync won't sync that device. तो वो user certificate property उसका update कैसे होता है? Now the device object that just got created, it will query the domain to get the SCP information, which is the service connection point. इसीलिए मैंने बोला कि हाइब्रिड Azure AD जॉइन में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है मेनली सर्विस कनेक्शन पॉइंट का, वो इधर तुम Azure AD कनेक्ट में ही कर देते हो फॉर ऑल डिवाइसेस, और अगर तुमको बैचेस में डिवाइस लेके जाना होता है देन यू डिप्लॉय इट विद अ ग्रुप पॉलिसी. तो तुम इसमें समझ ही सकते हो ये डिवाइस जो है ये डोमेन को क्वेरी करेगा टू गेट द एससीपी इंफॉर्मेशन. अगर उसको एससीपी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, मतलब तुमने जीपीओ इसमें नहीं डाला है या फिर तुमने Azure AD कनेक्ट में भी ग्लोबली कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो इस डिवाइस को कभी एससीपी इंफॉर्मेशन मिलेगा नहीं, ये डिवाइस प्रोसेस में आगे जाएगा ही नहीं. करेक्ट? ठीक है. So it queries the SCP information.
द डोमेन विल रिप्लाई विद द AD tenant info, क्योंकि तुम्हारा सर्विस कनेक्शन पॉइंट इज बेसिकली योर डोमेन इंफॉर्मेशन और टेनेंट इंफॉर्मेशन. And once that information is retrieved by the device will create a self-signed certificate to update the user certificate property of itself. Once the user certificate property is updated is when the device becomes eligible for the AD Connect sync. And we know that the default sync cycle of AD Connect is 30 minutes, but एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करके हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना डिफरेंट सिंक साइकिल्स चलाते हैं. कोई 1 घंटा भी रखता है, 2 घंटा भी रखता है, या फिर जो भी है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि तुमको जब उधर पे ऑटो पायलट तुम प्रोसेस कर रहे हो एज अ यूजर, तुमको जब विंडोज पे लॉगिन स्क्रीन मिला एंड यू आर साइनिंग इन, वो साइन इन के टाइम ये पूरा जो प्रोसेस है, मतलब इसका यूजर सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी अपडेट हुआ और फिर वो एलिजिबल हुआ सिंक के लिए एंड सिंक भी हो गया. सो अगर मैं डिफॉल्ट सिंक साइकिल 30 मिनट्स भी चल के रखूँ, सो 30 मिनट्स का बफर तुम्हारे पास होना चाहिए. तो ये ऑलवेज मतलब ये होता नहीं है. इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हाइब्रिड एश्योरेडी जॉइंट डिवाइस पे जब यूजर पहले बार साइन इन करके डेस्कटॉप पे रीच आउट करते हैं, उस डिवाइस को कोई पीआरटी मिलता नहीं है. एंड इस बिकॉज देयर इज नो पीआरटी, यूजर असाइंड पॉलिसीज उस डिवाइस पे स्टक रहता है. तो यूजर जब नेक्स्ट टाइम साइन आउट साइन इन करेगा, उसको तब जाके पीआरटी मिलेगा. एंड देन द यूजर असाइंड पॉलिसीज एंड एप्लीकेशंस विल स्टार्ट फ्लोइंग इन. ठीक है. तो उधर पे सिंक होता है. नाउ योर हाइब्रिड एश्योरेडी डिवाइस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन एश्योर एडी, एंड अभी जाके ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन सक्सेस होता है एंड यूजर साइन इन करता है तो उसको एश्योर एडी पीआरटी मिलता है. एंड दैट इज देयर कम्युनिकेशन विद इंट्यून एंड अदर M365 सर्विसेज स्टार्ट. सो यही तुम्हारा हाइब्रिड एश्योर एडी जो ऑटो पायलट का प्रोसेस है. ऐसे जॉय, अगर अगर मेरा जो डिवाइस है वो ऑलरेडी हाइब्रिड एज्योर रेडी जॉइन है, ठीक है, तो उसका तो एक डिवाइस आईडी ऑटोमेटिकली हमारे एज्योर रेडी पे होगा ही, ठीक है. तो तभी जाके अगर मुझे ऑटो पायलट रन करना है तो मुझे उसको उस डिवाइस को रीइमेज करना होगा, राइट. तो जब मैं रीइमेज करूंगा तो उस टाइम पे जो प्रीवियस आइडेंटिटी है, जो हाइब्रिड एज्योर रेडी जॉइन का जो प्रीवियस आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी वहां से डिलीट हो जाएगा एज्योर रेडी से. टेल रिकॉर्ड बन के रह जाएगा. अच्छा, तो वो डुप्लीकेट हाइब्रिड रिकॉर्ड एश्योर नहीं एडी होगा. जॉइंट पे नहीं. हाइब्रिड एश्योरिटी जॉइंट पे योर डिवाइस एक्चुअल डिवाइस ऑब्जेक्ट इज इन ऑन प्रेमाइसेस. हम्म. ये जो बनता है दैट इज अ सिंक डिवाइस ऑब्जेक्ट. हम्म. तुमको अगर रीइमेज करना है हाइब्रिड एश्योरिटी जॉइंट प्रोसेस में, देन यू हैव टू हैव अ क्लीन अप प्रोसेस इन योर ऑन प्रेमाइसेस डोमेन. ये डिवाइस को तुम अगर क्लीन अप कर दोगे तो नेक्स्ट सिंक साइकिल पे एश्योर एडी कनेक्ट ये डिवाइस को हटा देगा. हम्म. नहीं, मुझे ऑटो यू पायलट के लिए कैनॉट. तो रीइमेज करना ही पड़ेगा. और कोई और नहीं, कोई ऑटो पायलट के ऑप्शन है? लिए रीइमेज करना होगा, बट इफ योर डिवाइस इज ऑलरेडी इन हाइब्रिड एश्योरिटी जॉइंट स्टेट, तो तुम उसको रीइमेज करके फिर से हाइब्रिड एश्योरिटी जॉइंट स्टेट पे क्यों लेके जाओगे? वो तो ऑलरेडी हाइब्रिड एश्योरिटी जॉइंट स्टेट पे है. तभी मुझे क्या करना पड़ेगा अगर इन केस में ऑटो पायलट चाहता हूँ? देन व्हाट आई नीड टू डू? नहीं, ऑटो पायलट चाहता हूँ इसका ऐसा मतलब नहीं होता है. ऑटो पायलट इज अ प्रोविजनिंग वे. हम्म. The way of provisioning your device. Hybrid Azure join is a joint state of the device. MDM enrollment is the managed state of a device. If your existing device is already hybrid Azure join managed with Intune, सिर्फ उसको ऑटो पायलट करवाने के लिए why will you reimage the device and get it through ऑटो पायलट? तुम तो एंड स्टेट तो सेम ही स्टेट पे आओगे. यू नीड ऑटो पायलट टू. अगर तुम्हारे एनवायरनमेंट में हाइब्रिड एश्योरिटी ज्वाइन हो रहा है एंड यू हैव न्यू डिवाइसेस विच यू वांट टू गेट इनटू हाइब्रिड एश्योरिटी ज्वाइन स्टेट, तब जाके तुम उसको ऑटो पायलट के थ्रू लेके जाओगे. बट तुम्हारा एग्जिस्टिंग डिवाइस ऑलरेडी हाइब्रिड एश्योरिटी ज्वाइन है, उसको क्यों तुम रीइमेज करोगे? हाँ, समझ गया.
रजित, पीआरटी का कोई क्वेश्चन? जो है इसमें एक क्वेश्चन ये था कि पीआरटी में नॉर्मली हमने पहले आपने बताया था कि रिफ्रेश टोकन जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना फॉर आईओएस के लिए, जिसमें एक्सेस टोकन, आईडी टोकन प्लस रिफ्रेश टोकन आपने बोला था, इफ यू रिमेम्बर। सो यू सेड दैट एक्सेस टोकन को बार-बार यूजर के पास ऑथेंटिकेशन के लिए ना जाना पड़े, दैट इज द यूज फॉर रिफ्रेश टोकन, करेक्ट? Well, it refreshes your authentication every time so that it not reaches the user for authentication, keep popping it up. ये काम यहाँ भी यही हो रहा है? हाँ, पीआरटी का तो तुम्हारा फुल फॉर्म क्या है? प्राइमरी रिफ्रेश टोकन। वो रिफ्रेश ही करेगा ना। दिस इज द मास्टर रिफ्रेश टोकन। तो ये तुम्हारा पूरा डिवाइस का मास्टर रिफ्रेश टोकन है, लेकिन ये मिलता है यूजर साइन इन के बाद ही है, तो ये यूजर का ही डेटा लेके आता है। तो दिस पीआरटी हैज द पावर टू रिफ्रेश योर एक्सेस टोकन। और भी बहुत सारे टोकन्स है तुम्हारे, मतलब माइक्रोसॉफ्ट में टोकन्स का बहुत फैमिली है। लाइक देयर इज एफआरटी विच इज फैमिली रिफ्रेश टोकन, एमआरआरटी है, अभी फुल फॉर्म मत पूछो, भूल गया। मतलब ऐसे करके बहुत टोकन्स है, बट जितना भी टोकन्स है सबका मास्टर तुम्हारा पीआरटी है। पीआरटी मिसिंग है तो डिवाइस में कुछ काम नहीं होगा। और ये एसिंक्रोनस प्रोसेस है, मतलब it takes 30 minutes of time normally because of the sync cycle, and by the time user gets the sign in page and it sign ins, तो उसको उतनी देर वेट करना पड़ेगा या जब तक पॉलिसी नहीं आएगी इट विल बी इन स्टक स्टेट अगर हाँ, तब तक प्रियरिटी वो नहीं स्टक पहुंचा? स्टेट में रहेगा। ओके। आपने स्क्रिप्ट बनाई है वेयर यूजर कैन नॉट पास दैट अकाउंट सेटअप फेज में, वो अटका रहता है till the time the हाँ, PRT reaches it. You gave it a buffer time of 30 minutes so that it reaches the नहीं, policy. मैं सिर्फ चेक करता हूँ। मैं पीआरटी का नहीं चेक करता। मैं उसमें यूजर को सिर्फ ब्लॉक करके रखता हूँ मेरा स्क्रिप्ट में। Mm, जब तक तुम्हारा ये एज्योर एडी का सिंक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, ये सिंक प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इधर पे ये जो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन सक्सेस, ये वाला जो इवेंट है ना, इसका mm, एक इवेंट जनरेट होता है डिवाइस पे। मेरा स्क्रिप्ट सिर्फ इसी इवेंट को मॉनिटर करता है। इफ दिस इवेंट इज नॉट देयर, देन द डिवाइस हैज नो आइडेंटिटी, देन वो यूजर को मतलब डेस्कटॉप पे नहीं लाने देगा, तो उसको ब्लॉक करके रखेगा उधर पे अपना खुद का एनिमेशन स्क्रीन पे। तो जैसे ही मिलेगा कि ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन इज सक्सीडेड, उसको मिल गया, वो डिवाइस को रिस्टार्ट करेगा ताकि यूजर साइन इन इवेंट का कंप्लीट हो पाए। फिर रिस्टार्ट नहीं होगा तो इधर पे साइन इन स्क्रीन कैसे आएगा? correct. और रीस्टार्ट ये के पहले मैंने कि बनाया डिफॉल्ट था तो ओटिस के टाइम में, ओटिस में ही बनाया था शायद, बट कोई यूज नहीं करता। इसीलिए मैं बोलता हूँ हाइब्रिड एडिटर। तुम मतलब 100 ऑर्गेनाइजेशंस ले लो, उसमें से तुमको हार्डली मतलब 10 या 12 में ही हाइब्रिड एश्योरेडी जॉइन मिलेगा, जो कि मतलब ऑटो पायलट के साथ भी हाइब्रिड एश्योरेडी जॉइन कर रहे हैं। इसीलिए कि हम अकाउंट सेटअप को भी मतलब वी डोंट गेट दैट फेस, रिमूव इट, या माइक्रोसॉफ्ट रेकमेंड करता है उसको मत चलाओ। हाँ, इसीलिए यूजर वो ईएसपी को स्किप कर देने बोलता है। बट प्रॉब्लम इधर पे ये है, देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज मूविंग टू द क्लाउड। तो इसमें ऑब्वियसली एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू एनवायरनमेंट्स, वन इज द क्लाउड एनवायरनमेंट, वन इज द एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट। नाउ, जो ऑर्गेनाइजेशंस तुम्हारा क्लाउड को एम्ब्रेस कर चुका है, दे हैव फेस नो प्रॉब्लम। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस का माइंडसेट ये है कि आई विल
लाइक टू कंटिन्यू विथ माई एग्जिस्टिंग सेटअप और इसको क्लाउड के साथ लेके जाऊंगा, इसके हिसाब से क्लाउड बनाऊंगा। प्रॉब्लम वही सारे ऑर्गेनाइजेशंस को होता है उसका। ये लोग मतलब ये इनका जो ये ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट चलता है, दैट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी। इन लोग के पास पैसा है, ये लोग खर्चा कर रहे हैं, बस यही बात है, और कुछ है नहीं। हमारा एग्जिस्टिंग डिवाइस है, नो वन इज सेइंग टू रीसेट रीइमेज एवरी डिवाइस एट वन गो एंड मूव टू क्लाउड। हमारा एग्जिस्टिंग डिवाइस है, तुम उसको हाइब्रिड एश्योरिटी जॉइन स्टेट पे लाओ, get the benefits of cloud attached to those existing devices and continue working with them. That is good. कोई भी तुम्हारा आर्किटेक्ट या फिर एसएमई यही सोल्यूशन देगा फॉर एग्जिस्टिंग डिवाइस। प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है इफ यू वांट टू डू अ लीगेसी एनवायरनमेंट फॉर अ न्यू डिवाइस आल्सो। तुम्हारा न्यू डिवाइस अगर तुम ला रहे हो एनवायरनमेंट में, bring those devices as a cloud only device, prepare a cloud only environment that can match your on premises environment। अभी यहाँ पे मैच कैसे होगा? There will never be a 1:1 match between a on premises domain and a cloud tenant। तुम्हारा जीपीयू में जो सेटिंग्स तुम्हारा 20-25 साल से चले आ रहे हैं, यू विल नॉट हैव द सेम जीपीयू सेटिंग्स इन क्लाउड। तुमको खुद पता नहीं है कि तुम्हारे पास 1000 पॉलिसीज है, उस 1000 पॉलिसीज में एक्चुअली कितने पॉलिसीज काम का है, कितना पॉलिसीज तो डेप्रिकेट हो चुका है जो तुमको पता भी नहीं है। तो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट ऑफ द कंपनी। कंपनी का भी माइंडसेट नहीं बोलूंगा, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड द टेक्निकल नॉलेज ऑफ द सीटीओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सीटीओ जो डायरेक्शन देगा उसी डायरेक्शन पे ऑर्गेनाइजेशन का टेक्नोलॉजी मूव करेगा। तो इफ योर सीटीओ इज ओल्ड स्कूल, देन यू विल हैव अ ओल्ड स्कूल मेथोडोलॉजी। हम लोग का एटॉस का भी, हम लोग नहीं, अभी मेरा तो एटॉस है नहीं, आई एम एविडेंट, बट तुम लोग का एटॉस का भी सीटीओ इज अ वेरी बुढ़ा गाई। बट इवन आफ्टर बीइंग सच अ बुढ़ा, ही इज सो मच क्या बोलूं, एडवांस्ड, कि 2018-19 में एटॉस को फुल क्लाउड कर दिया। All depends on the decisions that are coming down from the upside, but it also depends on the project में काम कर रहे हो, so it also depends on the decision of the architect and the SMEs। solutioning टीम प्रोजेक्ट लेके आता है कि वी विल डू हाइब्रिड एश्योरिटी जॉइन फॉर दिस। तुम कस्टमर का रिक्वायरमेंट चेक किए, उसमें देखे कि जो सोल्यूशनिंग किया गया है वो सोल्यूशनिंग का एक्चुअल में रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी जैसे बोला जा रहा है सिर्फ तुम उसी को रटोगे, तो देन यू आर जस्ट एन एवरेज वर्कर। तुम उसको रीसोल्यूशनिंग करके कस्टमर के साथ आर्ग्यू नेगोशिएट करके अगर तुम कस्टमर को समझा पाओ कि यू डोंट नीड दिस एक्चुअली, री री इनिशिएट होगा, रीनेगोशिएशन होगा, री कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन यू आर अ गुड आर्किटेक्ट, गुड सॉल्यूशन प्रोवाइडर। कंपनीज का क्या है, अपना सेलिंग टीम जो है वो तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स को विन करने के लिए तो कस्टमर को कुछ भी बोल देता है। आपको ये चाहिए, हाँ कर देंगे, आपको वो चाहिए, हाँ कर देंगे। अरे हम कैसे करेंगे? का कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। जैसे ही अभिजीत ने अभी क्वेश्चन किया था कि मेरा एग्जिस्टिंग हाइब्रिड एचओडी जॉइंट डिवाइसेस है, उसको मैं रीसेट रीइमेज करके ऑटो पायलट करूँ, सॉल्यूशनिंग टीम तो बोल देगा हाँ कर दो। बट तुम क्यों करोगे, उसका पीछे का लॉजिक तो मुझे बताओ। समझो गए हो?
हेलो, कोई है कॉल पे? यस जॉय। यस यस के अभी हम लोग एक करेंगे क्वेश्चन और जॉय, छोटा सा। हाँ बोलो। आ- आप कहते हो जैसे डिफॉल्ट यूजर 0 आपका जो चलता है स्टार्टिंग से ड्यूरिंग द क्लाउड एक्सपीरियंस हो, उसके बाद में जब ओबी से, और ये कंटिन्यू रहता है टिल द लॉगिन, तो ये रिबूट जो इसमें होता है, इट्स अ मैंडेटरी रिबूट आफ्टर डिवाइस सेटअप फेज इन हाइब्रिड। रिबूट तो तुम्हारा एज्योर एडी जॉइन प्रोसेस में भी होता है, मतलब रिबूट नहीं होता है, साइन आउट साइन इन तो होता है। स्क्रीन कुछ देर तुम्हारा डिवाइस सेटअप कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही मतलब वो अकाउंट सेटअप में नहीं जाता है। देखना स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, डार्क होता है, फिर वो वापस आता है, फिर तुम्हारे अकाउंट सेटअप पे जाता है। और अगर डिवाइस सेटअप में एक्चुअली तुम्हारा कोई रिबूट हुआ तो देन जाके तुमको लॉगिन भी करना पड़ता है, क्योंकि वो जो कैश क्रेडेंशियल वो क्रिएट करता है वो बफर चला जाता है। पर्ज हो जाता है। हम्म। तो तुम्हारा हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइन प्रोसेस हो कि तुम्हारा एज्योर एडी जॉइन प्रोसेस हो, डिवाइस सेटअप फेज का जैसे एंड होगा, दैट इज द एंड ऑफ डिफॉल्ट यूजर 0, और वहां पे साइन आउट साइन इन एक्टिविटी होगा ही होगा। Okay. नाउ इन केस ऑफ एज्योर एडी जॉइन, अगर तुम्हारा कोई रिस्टार्ट नहीं है तो साइन आउट साइन इन इज तुम्हारा सीमलेस प्रोसेस। वो ऑटोमेटिक अपने बफर से वो क्रेडेंशियल्स लेके साइन इन कर देता है यूजर अकाउंट को, और उसी से लेके ईएसपी अपना अकाउंट सेटअप फेज कंटिन्यू करता है। बट इन केस ऑफ हाइब्रिड एज्योर एडी जॉइन, जो पहला साइन इन हुआ था वो एज्योर एडी को हुआ था, और ये डिवाइस सेटअप फेज के बाद जो साइन इन होगा, मतलब यूजर अकाउंट जो क्रिएट होगा, वो साइन इन जो होगा, दैट साइन इन नीड्स टू हैपन विद द डोमेन। तो इसीलिए उसका बफर क्रिएट करके उसको ऑटोमेटिक साइन इन नहीं किया जा सकता, इसीलिए वो रिस्टार्ट होके तुमको विंडोज साइन इन स्क्रीन पे लेके आता है। अंडरस्टूड, यही क्वेश्चन था, क्योंकि अगर वहां पे रिबूट या फेज में होता है तो व्हाई इट कंटिन्यूज इन अकाउंट सेटअप इन हाइब्रिड एडीजे, क्योंकि वहां पे तो वो कंटिन्यू रहता है, इट विल नॉट आस्क, बट हाइब्रिड में टास्क। हाँ, हाइब्रिड में वो हमेशा याद करेगा, क्योंकि इन केस ऑफ एडीजे ऑल्सो, एडीजे में जो अभी रीजन बोला वो तो सेम ही है, और दूसरा रीजन ये है कि एडीजे में तुम्हारा साइन इन जो हो रहा है, वो पहला साइन इन जो हुआ था वो भी एज्योर एडी को हुआ था। डिवाइस पे विंडोज का जो साइन इन हो रहा है उसका भी अथॉरिटी एज्योर एडी है। बट इधर पे पहला साइन इन जो हुआ था वो एज्योर एडी को हुआ था, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑटो पायलट प्रोसेस। बट दूसरा साइन इन जो होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ योर ऑफलाइन डोमेन जॉइन, जो कि डोमेन को होगा, नॉट एज्योर एडी। और इसके बाद से तुम्हारा उस डिवाइस पे जितना भी लॉगिन होगा, वो तो मैंने विंडोज के टाइम पे ही बोला था, हाइब्रिड एश्योरिटी जॉइन में जो विंडोज साइन इन इवेंट होता है, द साइन इन और लॉगिन इवेंट्स आर गोइंग टू योर डोमेन एंड नॉट टू क्लाउड। हमारा उधर पे पासवर्ड है सिंक्रोनाइज्ड हो कि पास थ्रू हो कि फेडरेटेड हो, दैट डज नॉट मैटर। विंडोज साइन इन विल गो टू योर डोमेन। यस। एक क्वेश्चन और जो है, बोलो। कल हमने प्री प्रोविजन डिस्कस किया था ना, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि नॉर्मली जो डिवाइस सेटअप और डिवाइस प्रिपरेशन स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है, और जब डिवाइस रिसील करके हम वापस भेज देते हैं एंड यूजर को, एंड इट गोस थ्रू अ फेस जिसमें वो लॉगिन करता है एंड इट जस्ट टू अकाउंट सेटअप लॉगिन करके। लेकिन व्हाट आई रेड इन द डॉक्यूमेंट की डिवाइस प्रिपरेशन स्टेप फिर से एक बार चलता है जस्ट टू इंश्योर पॉलिसी, कोई नई पॉलिसी या कोई नया एप्स तो नहीं आए, ऐसा होता है रिसील होने के बाद, मतलब हमें दिखता नहीं बट इट रन्स। मैंने तो देखा नहीं है ऐसा। यूजर जब व्हाइट ग्लव के केस में यूजर फेज में यूजर जब साइन इन करेगा,
साइन इन करके वो डायरेक्टली अकाउंट सेटअप फेज में ही जाएगा। हम्म वो डिवाइस सेटअप फेज और उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि फॉर इंट्यून उसका पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। अभी अगर बीच में समझ लो कि तुमने जब रीसील किया और जब एक्चुअली यूजर उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है, इस बीच में तुमने अगर पॉलिसी का कुछ चेंज किया हम्म बाई चांस, तो वो दैट न्यू पॉलिसी विल टेक इफेक्ट आफ्टर यू रीसेट और रीइमेज द डिवाइस, क्योंकि डिवाइस तो ऑलरेडी सील्ड हो चुका है, उसका कॉन्फ़िगरेशन उधर पे लॉक्ड है, वो अपना प्रीवियस कॉन्फ़िगरेशन पे ही चलेगा। हाँ, अभी अगर तुमने क्या किया, समझ लो कि तुमने कुछ नया पॉलिसी या फिर नया एप्लीकेशन तुमने डाला है, जो कि तुमने डिवाइस ग्रुप या यूजर ग्रुप पे डाला है। ऑब्वियसली वो पॉलिसी और एप्लीकेशन तो उस डिवाइस पे आएगा, बट नॉट ड्यूरिंग द ईएसपी। वो जैसे यूजर डेस्कटॉप पे जाएगा उसके बाद आएगा। टारगेट तो है, हम्म वो आएगा, बट ईएसपी में नहीं आएगा। okay, ऐसे करेगा तो तुम्हारा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये 5 मिनट तो मैं आता हूँ, इसके बाद विंडोज अपडेट।
अच्छा, विंडोज अपडेट का अभी फिलहाल मेरे पास कोई पीटी नहीं है, तो आई विल यूज नॉर्मल समझाऊंगा। विंडोज अपडेट व्हाट, पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज विंडोज, मतलब व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ विंडोज अपडेट, हम क्या अचीव करते हैं? Windows updates is normally used to get the bugs or fixes or vulnerabilities or monthly basis that Microsoft releases on past Tuesday. Security and the feature updates. सो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड है उसमें जो वल्नरेबिलिटीज है या फिर जो आइडेंटिफाइड हुआ है, fixes for those, so bug fixes and improvements of existing features and or addition of new features, यही तुम्हारा विंडोज अपडेट और मतलब विंडोज अपडेट है जिसको हम पैचिंग एक्टिविटी कहते हैं। प्रीवियसली माइक्रोसॉफ्ट ये जो अपडेट लाइफ साइकिल था फॉर देयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, it was a fixed life cycle policy. So we had one version, like one stream of operating system coming out. May say for example Windows XP, Windows 7, and then we used to have service packs released every year for those operating systems to make them patched. तो like XP का भी सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3 आता था, विंडोज 7 का भी सेम है। इसमें क्या है, विंडोज रिलीजेस मंथली पैचेस ऑन एवरी Tuesday of the second week of the month. Microsoft delivers the patches. बट क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस पहले तो थे, पहले का वो सारा सब कुछ गोल्डन इमेज मैनेजमेंट पे चलता था, इट वाज नॉट पॉसिबल टू अपडेट अ इमेज एवरी मंथ। तो क्या होता था, लोग मतलब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग देखते थे विद फिक्स लाइफ साइकिल पॉलिसी, द डिवाइसेस यूज्ड टू रिमेन अनपैच्ड फॉर अ ईयर, और जब फिर उसका पूरा साल का जो अपडेट निकाला है माइक्रोसॉफ्ट ने, उसी का माइक्रोसॉफ्ट जब वो सर्विस पैक करके निकालता था, देन वो इमेजिंग टीम उसका एक गोल्डन इमेज बनाता था ना, उसको पैच होता था। ऐसे ही नॉर्मली पैचिंग किया जाता था। तो द डिवाइसेस यूज्ड टू रिमेन अनपैच्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट इन केस अभी विंडोज 10 से माइक्रोसॉफ्ट ने जो स्टार्ट किया है, दैट इज कॉल्ड एज द मॉडर्न अपडेट लाइफ साइकिल, वेयर विंडोज सर्विसिंग इज कंटिन्यूअस एंड एवरग्रीन, और इसको हर महीने अपडेट मिलता है the way it should be, so your device is always in a patch state in the least possible minimum time that is there. इसीलिए विंडोज 10, विंडोज 11, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में यू डोंट हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस पैक्स। तो प्रीवियसली तुम्हारा डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ पैच वाज आल्सो डिफरेंट। यू हैड तो अगर मैं करूँ तो एमएस तुम्हारा विंडोज अपडेट, ये सर्विस तो पुराने से ही है। इधर पे तुम्हारा अपना कैटलॉग रिलीज करता था, अपडेट कैटलॉग, राइट? राइट क्या तुम लोग WSUS जानते हो? Correct. Yes. हाँ, तो अपडेट कैटलॉग इधर पे माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करता था। उसके हिसाब से जो ऑर्गेनाइजेशन आईटी एडमिन है, वो आईटी का अपडेट कैटलॉग को चेक करके, समझ लो ये अपडेट कैटलॉग में 1 2 3
4 बग फिक्स है, तो इसमें से आईटी एडमिन ने सिर्फ 1 और 2 को अप्रूव किया है। तो यही दोनों अपडेट इधर पे पुल डाउन होता था तुम्हारा WSUS सर्वर पे, विच इज, और इधर से तुम्हारा फिर WSUS से तुम्हारा जो भी मतलब बाकी सारे तुम्हारा मैनेज डिवाइसेस है में डिप्लॉय किया जाता था। तो बीच में ऑब्वियसली कॉन्फ़िग मैनेजर आता था, तो मैं सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ। तो उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे वो लोग अपलोड होते थे, फिर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। बट दिस वाज द ट्रेडिशनल विंडोज पैचिंग प्रोसेस। अभी का क्या है, अभी का ये सारे कोई सिनेरियो है नहीं। Scenarios as this such। विंडोज अपडेट सर्विस जो है इधर से, और एक सर्विस माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया, दैट इज विंडोज अपडेट फॉर बिजनेस। और तुम्हारा जो इंट्यून एनरोल डिवाइसेस है उसमें तुम अपडेट रिंग कॉन्फ़िगर करते हो, एंड ऑल योर क्लाउड मैनेज डिवाइसेस को उस अपडेट रिंग के हिसाब से पैचिंग मिलता है। नो ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर। WUFB का आपने फुल फॉर्म क्या बोला जॉय? विंडोज अपडेट फॉर बिजनेस। तो पहले ये सिनेरियो था, मतलब जब पहले माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया था, यही वाला सिनेरियो से अपडेट रिंग से हम लोग इसका मंथली पैचिंग भी करते थे, और हम लोग इसका वर्जन अपग्रेड भी करते थे। करेक्ट। बट अभी क्या किया, it was seen that this particular activity, doing it with update ring is a bit tedious, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशंस करना पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ने, समझ लो कि ये जो है विंडोज 11, अभी तुम्हारा ये डिवाइसेस विंडोज 11 22H2 पे चल रहा है, एंड माइक्रोसॉफ्ट ने आज विंडोज 11 23H2 रिलीज कर दिया। तो तुम चाहते हो कि ये वर्जन जो है ये तुम्हारे डिवाइस पे अभी डिप्लॉय ना हो, देन यू विल हैव टू सेट अ डेफरल पीरियड इन हियर, राइट। और ये डेफरल पीरियड ये सब कैलकुलेट करने में, मतलब अगर इफ यू आर हैविंग मल्टीपल रिंग्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तुम अपडेट रिंग पॉलिसी तो कितना भी क्रिएट कर सकते हो। तो उस हिसाब से जैसे तुम्हारा अर्ली अडॉप्टर, अगर तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैसे सेग्रेगेट कर पाते हो कि यू हैव अर्ली अडॉप्टर्स, यू हैव आईटी टेस्टर्स, then you have the mass deployment, and then you have the delayed adoption, तो वैसे करते हो तो then you will have to calculate different deferral period for different rings। वो सारा tedious होता था, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, विंडोज अपडेट फॉर बिजनेस से एक और सर्विस निकाला, एंड दैट दे कॉल्ड WV विंडोज अपडेट फॉर बिजनेस DS, डिप्लॉयमेंट सर्विस। ये डिप्लॉयमेंट सर्विस से वो लोग क्या करते हैं, this deployment service is only there to do two policies। एक है फीचर अपडेट, and the other one is expedite।
समझ लो। तुम्हारा ये जो मंथली पैचिंग है रिंग, इसका नॉर्मल तुम इसको कोई चेंज नहीं करना चाहते हो, और तुम्हारा मंथली पैचिंग में डेफरल पीरियड तुमने दे के रखा है 10 दिन। मतलब अगर तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट ने, समझ लो हाइपोथेटिकल, इट्स 10th अक्टूबर को अगर अपडेट रिलीज किया, हाइपोथेटिकल, तो तुम्हारे इस डिवाइस को जाके अपडेट कब मतलब अवेलेबल होगा, will show up as available on 20th October, क्योंकि तुमने 10 दिन का डेफरल पीरियड दिया है। नाउ इसमें से तुम समझ लो कि ये जो 3 डिवाइस तुम्हारा अभी है, इसमें से तुम्हारा एक डिवाइस क्रिटिकल है, और उस पर्टिकुलर डिवाइस को तुम ये जो अपडेट है ये अभी के अभी भेजना चाहते हो। तो अपडेट रिंग से वो पॉसिबल नहीं है, बट वो डिप्लॉयमेंट सर्विस से पॉसिबल है। अगर तुम एक एक्सपीडिटेड क्वालिटी अपडेट का पॉलिसी तुम सिर्फ इस डिवाइस पे डाल दोगे, तो वो क्या करेगा, ये डेफरल पीरियड को वो ओवरराइड करेगा, एंड इस डिवाइस को वो जाके जो अपडेट है वो तुरंत का तुरंत जाके डिलीवर करेगा। समझ आया? हाँ ना। यस सर। Okay. तो इंट्यून में हम लोग का किधर किधर है अपडेट, 3 टाइप का पॉलिसी जैसे मैंने बोला। फर्स्ट इज अपडेट रिंग्स फॉर विंडोज 10 एंड लेटर। यहाँ पे तुम अपना बेस अपडेट रिंग क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल अपडेट रिंग्स तुम क्रिएट कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू, डिपेंडिंग ऑन द चैनल। और उस सारे चैनल का ये जो फीचर डिफरेंट पीरियड है, क्वालिटी डिफरेंट पीरियड है, यू कैन चूज डिफरेंटली। इसमें एक प्रोफाइल हम नॉर्मल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या ऑप्शन है देखने के लिए। तो फर्स्ट you get the option whether you want to allow Microsoft product updates or not, and whether you want to deliver driver updates or not. ये दोनों। then you get the quality update deferral period। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अगर ट्यूसडे को जो सेकेंड वीक ऑफ, अरे मंथ का सेकेंड वीक का ट्यूसडे में जो अपडेट रिलीज करता है, वो तुम्हारे डिवाइस को कब तक मिलेगा। 0 डे डेफरल है, मतलब उसी दिन अवेलेबल होगा। 5 दिन बाद करोगे तो मतलब 5 दिन बाद वो अवेलेबल होगा। इस हिसाब से यू कैन चूज द डेफरल पीरियड। सिमिलरली फीचर अपडेट, अगर तुम्हारा आज माइक्रोसॉफ्ट ने न्यू वर्जन ऑफ विंडोज रिलीज किया, इट्स नॉट द मंथली अपडेट, न्यू वर्जन मतलब विंडोज 11 22H2 से विंडोज 11 23H2, तो आज रिलीज किया, वो क्या आज के आज ही तुम्हारे डिवाइस को मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। And since we are having 2 versions of operating system now, तो अभी तुमको ये ऑप्शन भी मिलता है whether you want to upgrade your Windows 10 devices to the latest Windows 11 release। ये है। एंड देन तुम्हारे पास ऑप्शन है कि कितने दिन में अगर इंस्टॉल अपडेट हो जाता है तो हाउ मच टाइम पीरियड यू शुड हैव फॉर द रोल बैक। तुम इधर से कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि तुम्हारा वो इनसाइडर बिल्ड तुम भेजना चाहते हो कि नहीं। मोस्टली हम इनसाइडर बिल्ड्स नहीं भेजते हैं। एंड देन यू हैव ऑल दी यूजर एक्सपीरियंस, मतलब अपडेट बिहेवियर की ऑटो इंस्टॉल एट मेंटेनेंस टाइम, और इस वो स्केड्यूल टाइम या जो भी है। एक्टिव आवर्स तुम डिफाइन कर सकते हो डिवाइस का। सो
विद इन दिस टाइम पीरियड जो तुम इधर पे बोलोगे उस टाइम पीरियड पे डिवाइस कभी भी रिस्टार्ट नहीं होगा। So, जॉय और हाँ जॉय, तो यहाँ पर जो आपने ये है ना वो ऑप्शन की सेट फीचर अपडेट अनइंस्टॉल पीरियड, तो अगर मतलब विंडोज के दूसरे वर्जन्स में ये जाते हैं, ठीक है, तो अनइंस्टॉल पीरियड मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आई विल हैव एन ऑप्शन एज एन यूजर टू अनइंस्टॉल इट और व्हाट? यस, तुम्हारा समझ लो तुम विंडोज 11 22H2 से 23H2 तुम्हारा अपग्रेड हुआ और इधर पे हम्म अनइंस्टॉल पीरियड मेरा 10 दिन है। सो हम्म यू एज एन यूजर हैव 10 days ऑफ टाइम टू मूव बैक टू 22H2 इफ यू वांट टू। अच्छा अच्छा, तो फीचर अपडेट डिफरल पीरियड जो मेरा था, वो फीचर अपडेट डिफरल पीरियड पकड़ लीजिए 10 था, ठीक है, तो आज अगर रिलीज हुआ है तो 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम को मतलब 22H2 से नेक्स्ट वर्जन में लेके चला जाएगा, राइट? अभी नहीं 10 दिन। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो आज माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया है तो 10 दिन बाद तुम्हारे सिस्टम को अवेलेबल होगा। तुम्हारे सिस्टम को उसके बाद वो अपडेट इंस्टॉल करना होगा। हम्म तो There are अगर certain यूजर इंस्टॉल। conditions and हम्म parameters after which the device is able to install a update. हम्म हमारे डिवाइस पे जो हम लोग का डिवाइस है, एक विंडोज अपडेट एजेंट इधर पे काम करता है। देयर इज अ क्लाइंट एंड देयर इज अ एजेंट। हम्म तो हमारा ये जो डिवाइस है, मैंने इधर से विंडोज अपडेट फॉर बिजनेस से मैंने पॉलिसी लगाया अपने डिवाइस को कि आई हैव अ 10 days डेफरल पीरियड। तो इसका मतलब इधर पे जो मेरा ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस पे मेरा जो विंडोज अपडेट का क्लाइंट है, it will reach out to Windows Update Service and it will see that there is a new update available, but then it will check that it has a policy that it has a 10-day deferral. It will ignore that policy, ignore the new update for 10 days. After this deferral period gets over, the Windows Update Service will contact Windows Update again and try initiate the update. बट ये जो अपडेट होगा, ये अपडेट तभी होगा और ये विंडोज अपडेट क्लाइंट तुम्हारे डिवाइस पे वो अपडेट तभी इंस्टॉल कर पाएगा if there are certain criteria and conditions that are made by your device. तो एग्जाम्पल क्वालिटी अपडेट की बात कर रहे हैं तो देन योर डिवाइस मस्ट हैव 2 GB ऑफ फ्री स्पेस। फीचर अपडेट की बात कर रहे हैं तो योर डिवाइस मस्ट हैव 10 GB ऑफ फ्री स्पेस प्लस the device needs to be actively connected to internet for 8 hours, जिसमें से 6 hours is a continuous usage। 2 hours का sleep या वो उसमें चलेगा, but 6 hours the user needs to be actively using the device। ये पैरामीटर मीट होता है तभी जाके विंडोज अपडेट अपडेट इंस्टॉल करता है। अगर तुम्हारा डिवाइस ऐसा ऐसा है कि तुम्हारे डिवाइस का ये जो पैरामीटर है ये मीट है, तुम्हारा डिवाइस को तुमने ऐसे स्लीप में डाला, या मॉडर्न डिवाइसेस स्लीप में भी डालते हो तो दे रिमेन्स कनेक्टेड विद इंटरनेट, बट तुमने अपने डिवाइस को स्लीप में डाला और छोड़ दिया और तुम सोचते हो कि 10 दिन बाद आके तुम्हारा डिवाइस अपडेट हो जाएगा, नहीं होगा। यू नीड टू यूज योर डिवाइस एक्टिवली फॉर 8 आवर्स, जिसमें से 6 आवर्स नीड्स टू बी अ कंटिन्यूअस यूज, तभी जाके विंडोज अपडेट एजेंट तुम्हारा डिवाइस में अपडेट इंस्टॉल करेगा। नाउ ये जो अपडेट, अगर समझ लो तुमने ये दोनों क्राइटेरिया मीट किया और अपडेट इंस्टॉल किया, तो तुमने उधर पे जो अनइंस्टॉल पीरियड 10 दिन का दिया, तो ये तुम्हारा डिवाइस अभी
ये तुम्हारा डिवाइस अभी विंडोज 11 22H2 से लेके विंडोज 11 23H2 पे चला गया, बट जिस दिन ये कंप्लीट हुआ उस दिन से यू विल हैव दैट अमाउंट ऑफ टाइम जो तुम उधर पॉलिसी में डिफाइन करते हो. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स विद दिस, यू कैन रिवर्ट बैक टू योर ओल्ड वर्जन. बट समझ लो तुमने 10 दिन दिया तो तुमने 10 दिन ही कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे ये जो इधर पे हमारे इधर पे ये सी ड्राइव में यहाँ पे विंडोज ये जो फोल्डर दिख रहा है, एक और फोल्डर बन जाएगा दैट इज विंडोज अंडरस्कोर ओल्ड करके. दैट विल कंटेन योर ओल्ड विंडोज. बट जैसे जिस दिन मतलब तुम्हारा 10 दिन अगर तुमने डिफाइन किया है, तो 11 नंबर डे को ऑन द 11th डे वो जो विंडोज अंडरस्कोर ओल्ड फोल्डर था दैट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड, सो यू विल हैव नो वे टू गो बैक. तब तुमको उधर पे कंटिन्यू करना पड़ेगा, और नहीं तो तुमको रीसेट करके फिर से रीइमेज करके पुराना वर्जन पे जाना पड़ेगा. और ओके सर, समझा. तो ये उधर पे है. तुम ऑप्शन दे सकते हो वेदर यू विल बी एबल टू पॉज द रिंग और नॉट. समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट रिलीज किया एंड यू गॉट टू नो दैट तुम्हारा 2-3 रिंग्स है, समझ लो ऐसे करके. ये जो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन है तुमने समझ लो ऐसे करके रिंग्स कॉन्फ़िगर किए हो, ठीक है. मतलब ईच ऑफ दिस रिंग्स हैज डिफरेंट डे. तो दिस इज योर रिंग 0, रिंग 1, रिंग 2 एंड रिंग 3. और इसमें सारे अलग अलग डिवाइसेस है, डिवाइस ग्रुप पे टारगेट होता है obviously. तो इसमें तुम्हारा समझ लो डेफरल पीरियड है डी डेफरल 0. इसमें तुमने दिया है डेफरल 5 डेज. इसमें दिया है डेफरल 10 डेज. इसमें दिया है डेफरल 20 डेज. तो माइक्रोसॉफ्ट अगर आज अपडेट रिलीज करता है, इसको आज के आज मिलेगा, इसको 5 दिन बाद मिलेगा, इसको 10 दिन बाद मिलेगा, इसको 20 दिन बाद मिलेगा. 20 दिन बाद किससे 20 दिन बाद? इससे 20 दिन बाद नहीं, इधर पे जब रिलीज हुआ इधर से 20 दिन बाद. ठीक है, मतलब इधर पे जो रिलीज हुआ, जिस दिन पे रिलीज हुआ, इससे 0 डेज, इससे 5 डेज, इससे 10 डे, और इससे 20 डे. ऐसा नहीं है कि इसको 0 डे पे मिले, इसको 5 दिन बाद मिला. इसको जो 10 दिन मिलेगा, ये 10 दिन इस 5 के बाद का 10 दिन नहीं है, इधर से 10 दिन है. समझा ना? अच्छा, ऐसे करके अगर हुआ तो समझ लो कि अपडेट इधर पे रिलीज किया माइक्रोसॉफ्ट में, और माइक्रोसॉफ्ट में कभी कभी कुछ कुछ अपडेट में वो एरर्स आते हैं, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ और वो सब आता है. तो तुमको समझ लो तुमको ये डिवाइस में मतलब ये जो 0 डेफरल पीरियड है इसमें तुमको प्रॉब्लम दिख गया, तुम्हारा डिवाइसेस इधर पे अफेक्टेड है. वो जो पॉज का फीचर है अगर तुम उसको इनेबल करते हो, देन यू विल हैव अ ऑप्शन टू पॉज दिस रिंग्स. तो ये बाकी जो रिंग है उसको तुम पॉज कर सकते हो. पॉज कर सकते हो, अगर तुम पॉज कर दिया मतलब अ, ये डेफरल पीरियड तब ओवरराइड हो जाएगा. ये सारे डिवाइसेस को देन बोला जाएगा कि डू नॉट कनेक्ट टू विंडोज. मतलब वो जब तक ये रिंग्स पॉज रहेगा, ये डिवाइसेस तुम्हारा अपडेट होगा नहीं. और अपडेट अगर होगा नहीं तो मतलब यहाँ से वो जो प्रॉब्लमेटिक अपडेट था वो डिप्लॉय होगा नहीं.
नाउ समझ लो माइक्रोसॉफ्ट को ऑलरेडी पता चल गया कि ये अपडेट में प्रॉब्लम है, तो माइक्रोसॉफ्ट उसका एक हॉट फिक्स निकालेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट नेक्स्ट उसका एक हॉट फिक्स निकाल दिया, तो देन ये तुम्हारा अभी पैच ट्यूसडे बन गया, ये पुराना वाला पैच ट्यूसडे खत्म हो गया, तो फिर से ये डेफरल 0 है, ये तुम्हारा डिवाइसेस पे टेस्टेड हो गया। अगर तुम देखते हो कि डिवाइसेस इसमें सक्सेसफुल चल रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, देन यू अनपॉज योर रिंग्स, और तुम्हारा बाकी सारे डिवाइसेस को भी अपडेट जैसे डिफरेंट स्टेट है उस पर मिलता रहेगा। समझे? ये ऑप्शन है तुम्हारा पॉज करने का। एंड लास्ट है डेडलाइन। सो ये डेडलाइन पे तुम डिफाइन करते हो एक्चुअली कि कितने दिन में तुम्हारा अपडेट डिवाइस पे इंस्टॉल होना चाहिए। रेफरल पीरियड डिफाइन करता है कि कब अपडेट एडवर्टाइज होगा डिवाइस को कि देयर इज अ न्यू अपडेट अवेलेबल। डेडलाइन सेटिंग्स डिटरमाइन करता है कि वो अपडेट कब तक डिवाइस में इंस्टॉल होगा। तो समझ लो तुमने डेडलाइन दिया 2 दिन का। 0 इज अनरियलिस्टिक, 0 देने का कोई मतलब नहीं बनता, 0 इज अनरियलिस्टिक। 2 दिन का अगर समझ लो दिए, मतलब डिवाइस को जिस दिन एडवर्टाइज हुआ कि तुम्हारे लिए एक अपडेट अवेलेबल है, उससे 2 दिन के अंदर डिवाइस को वो अपडेट इंस्टॉल करना होगा। बट डिवाइस उसको इंस्टॉल तभी कर पाएगा अगर डिवाइस का वो पैरामीटर्स मीट होता है, मतलब वो फ्री स्पेस और यूजेज का। अगर वो पैरामीटर मीट नहीं होता है तो डेडलाइन क्रॉस कर जाएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद भी तुम और ग्रेस पीरियड दे सकते हो, जो कि डेडलाइन मिस करने के बाद भी और 2 दिन का ग्रेस पीरियड दिए समझ लो। और इसके बाद वो रिबूट, और इससे तुम्हारा अपडेट रिंग क्रिएट होता है। ये नॉर्मल अपडेट रिंग है। अभी अगर तुमको फीचर अपडेट डिप्लॉय करना है, तो जैसे बोले कि अभी अपडेट रिंग से हम लोग वो विंडोज का वर्जन अपग्रेड नहीं करते, हम ये विंडोज अपडेट डिप्लॉयमेंट सर्विस का यूज लेते हैं, तो हम इधर से अब डिप्लॉय करते हैं। विच वर्जन ऑफ विंडोज, समझ लो कि मेरा डिवाइसेस अभी 22H विंडोज 11 22H2 रन कर रहा है, तो मैं किसका पॉलिसी बनाऊंगा? मैं विंडोज अच्छा 23H2 अभी तक लॉन्च नहीं हुआ विंडोज। अच्छा समझ लो मेरा डिवाइसेस विंडोज 10 22H2 रन कर रहा है, तो मुझे उसको विंडोज 11 में अपग्रेड करना है, तो मैं ये चूज करूंगा। और देन इधर पे भी तुमको ऑप्शन है कि how the update will be made available to the devices, so as soon as possible कि on a specific date कि gradually। तो gradually भी करते हो तो मतलब ये थोड़ा gradual रोल आउट पे जाता है, बट इट्स ओके। हम as soon as possible पे मोस्टली डिप्लॉय करते हैं। एंड नेक्स्ट करोगे तो देन यू विल हैव टू चूज डिवाइस ग्रुप, एंड उस पे अप्लाई कर दोगे तो वो सारे डिवाइसेस तुम्हारा अपग्रेड होने लगेगा। जॉय बोल रहा था वो अपडेट रिंग में भी तो ये सेम चीज था ना, अपडेट रिंग फॉर विंडोज 10 एंड लेटर, वहां पर भी तो हाँ आपका हाँ, फीचर अपडेट का बट ऑप्शन उसमें था। मैंने क्या बोला, उधर पे मैंने क्या बोला, उधर पे इफ आई हैव टू डू अ वर्जन अपग्रेड ऑफ विंडोज यूजिंग द अपडेट रिंग, उसमें मुझको डेफरल पीरियड का कैलकुलेशन करना पड़ता है। उधर पे मुझे अपना डेफरल पीरियड का अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि आज मेरा डिवाइसेस यहाँ पे ये जो रिंग है, इसमें समझ लो ये मेरा डिवाइस जो है, इस रिंग पे इन ऑर्गेनाइजेशन सारा डिवाइसेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन का नहीं रहता है। नाउ माय इधर पे जो भी डिवाइसेस है, दिस डिवाइसेस समझ लो ये विंडोज 10 21H2 पे रन कर रहा है, इधर पे विंडोज 10 22H2 पे रन कर रहा है, इधर पे विंडोज 10 23H2 पे रन कर रहा है, और इधर पे लास्ट मेरा जो रिंग है वो विंडोज 11 21H2 पे रन कर रहा है। अभी अगर तुम अपडेट रिंग पॉलिसी से इसका अपग्रेड, ये सारे वर्जन का तुम अपग्रेड कंट्रोल करोगे,
तुमको इसका डेफरल पीरियड कैलकुलेट करना होगा कि कब ये वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया था और मेरा नेक्स्ट बैच को कब नेक्स्ट वर्जन मिलना चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए फीचर अपडेट हम लोग वहां से नहीं करेंगे, मतलब फीचर अपडेट रिंग से नहीं करके फीचर अपडेट के लिए अलग सा हम लोग को बनाना इसीलिए पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने वो अलग सर्विस क्रिएट किया है, क्योंकि पहले जब ये सर्विस निकाला था, अपडेट रिंग वाज द ओरिजिनल अपडेट सॉल्यूशन जो माइक्रोसॉफ्ट पहले विंडोज 10 के साथ निकाला था। उसमें जब ये प्रॉब्लम देखा गया, देन जाके माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज अपडेट फॉर बिजनेस को और एनहांस करके एक नया सर्विस निकाला, दैट इज विंडोज अपडेट फॉर बिजनेस डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। तो इधर पे ये जो पॉलिसी है, दिस अपडेट रिंग, दिस इज कंट्रोलिंग योर विंडोज अपडेट फॉर बिजनेस। बट ये जो फीचर अपडेट एंड क्वालिटी अपडेट जो है, दिस टू आर योर विंडोज अपडेट फॉर बिजनेस डिप्लॉयमेंट सर्विसेज, इवन दिस ड्राइवर अपडेट। ये अभी तो ड्राइवर अपडेट मैंने अभी तक किया नहीं है, बट ओके। तो मोस्टली हम लोग जो मंथली जो पैचिंग होता है, मंथली पैचिंग हम लोग अपडेट रिंग से करते हैं। अगर हमको विंडोज का वर्जन अपग्रेड करना है, देन वी डू इट विद फीचर अपडेट्स। अगर हमको मंथली अपडेट ऐसा ही है कि मेरा 0, 5, 10, 20 डे का डिफरल पीरियड मेरा रिंग्स चल रहा है, बट इसमें से कुछ कुछ डिवाइसेस को मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी उसमें अपडेट जाए, वो अपडेट रिंग से फिर से पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए मैं क्वालिटी अपडेट का यूज करूंगा, जो अगेन डिप्लॉयमेंट सर्विसेज का पार्ट है। इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, वी विल बी एक्सपेडाइटिंग, इधर पे एक्सपेडाइट द इंस्टॉलेशन ऑफ क्वालिटी अपडेट, और वो तुमको लास्ट तुम्हारा जो 3 होता है जो रिलीज किया हुआ है, उसको सिलेक्ट करने को देता है कि ये अपडेट जो है, तुम ये अपडेट को अभी के भेजो। एंड इधर पे तुम ये एक्सपेडेट मतलब वी आर आस्किंग द डिवाइस टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल, एज इमीडिएट एज पॉसिबल। तो इधर पे हम बांध भी देते हैं कि कितने दिन में डिवाइस रिस्टार्ट होगा। तो इसको हम बोल रहे हैं कि कैसे भी करके जाओ, तुम इस डिवाइस पे जाके ये अपडेट इंस्टॉल करके आओ। तो यही 3 तो अभी अपडेट का कॉन्सेप्ट है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट ने इसके साथ और एक अपडेट किया कि ये अपडेट रिंग, फीचर रिंग और ये जो सब कुछ है, दिस इज समथिंग दैट वी कॉन्फ़िगर एज एन एडमिन फॉर द एनवायरनमेंट। नाउ माइक्रोसॉफ्ट ने एक न्यू सर्विस भी दिया है, विच इज नोन एज ऑटो पैच। तो ऑटो पैच क्या करता है, मेरा अभी कोई डिवाइस इसमें है नहीं, बट ऑटो पैच क्या करता है, मैनेजेस योर अपडेट्स ऑटोमेटिकली, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट खुद मैनेज करता है। तुमको इसमें सिर्फ डिवाइसेस को ऑटो पैच का ग्रुप में डालना होता है। तो इफ यू एनेबल दिस विंडोज ऑटो पैच सर्विस, एक ग्रुप क्रिएट होता है, वो उसमें तुमको सिर्फ अपना डिवाइसेस डालना पड़ता है, एंड योर डिवाइसेस विल बी पैच्ड ऑटोमेटिकली एज पर माइक्रोसॉफ्ट बेस्ट प्रैक्टिस। तो अपडेट रिंग में अगर तुम जाओगे तो पॉलिसी तो तुम्हारे इधर ही क्रिएट होता है, बट दिस पॉलिसीज आर मैनेज्ड विद माइक्रोसॉफ्ट। तो इधर पे तुम देख सकते हो, ये जो विंडोज ऑटो पैच अपडेट पॉलिसी डिफॉल्ट, लास्ट, रिंग 1, रिंग 2, रिंग, ये सारे ऑटो पैचेस का रिंग है। वेयरएज ये जो 3 रिंग है, ये 3 रिंग मेरा क्रिएटेड टेस्ट रिंग है। तो अगर तुम्हारा डिवाइस तुम ऑटो पैच सर्विस के साथ रजिस्टर करते हो, देन यू डू नॉट नीड टू कॉन्फ़िगर एनीथिंग और एनीथिंग। तुम सिर्फ डिवाइस को रजिस्टर कर दो एंड माइक्रोसॉफ्ट विल टेक केयर ऑफ द अपडेट फॉर यू। बट इसका लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है। to use Windows Autopatch, you must have a Windows E3 or E5 license.
ठीक है। बट कस्टमर को कभी बोलो मत इसके बारे में प्रोएक्टिवली, वरना आधे लोग की जॉब चली जाएगी। हाँ नहीं, सर्विस अच्छा है, अच्छा काम करता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, करता है तभी तो बोला कि बाकी लोग की चली जाएगी जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं ये ना अभी तो बंदे। मतलब हाँ, जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं खुद का ये दिमाग के दही करता है इधर पे, मतलब पैचिंग का एक्टिविटी को दिखाता है कि बहुत टफ एक्टिविटी है। यस यस। एक्चुअल में तो कोई टफ है नहीं इसका। बट एक अच्छा चीज जॉय, है, ऑटो पैच में एक लिमिटेशन ये है कि आपको ड्राइवर अपडेट के लिए, बिकॉज ये तो सब जाएगा, ड्राइवर अपडेट अभी तक इसमें इंक्लूड नहीं किया है, मींस दैट इज वो बाय कर डिजाइन। देगा, हाँ ओके। कर देगा बाद में। हम्म। ड्राइवर अपडेट तो अभी अभी आया जीए पे। ओके। एंड बायोस और फर्मवेयर अपडेट के ऊपर कुछ अब है क्या, बिकॉज यू बायोस और फर्मवेयर अपडेट ओनली फॉर सरफेस डिवाइसेस। यस, बट अगर मान लो बाकी कोई ओएम वेंडर से अभी जैसा 2021 में ये अपडेट आया था कि सारे ओएम वेंडर्स के साथ वो माइक्रोसॉफ्ट टाई अप करेगा एंड क्लाउड पे ही वो अपना बायोस और फर्मवेयर अपडेट्स और जो उनके डेडिकेटेड एप्स के लिए ड्राइवर्स हैं वो लॉन्च जैसे ही होंगे, दैट विल बी ट्रिगर आउट थ्रू द विंडोज अपडेट फॉर बिजनेस। लेकिन ये जो तब उसकी जाके अगर हम्म हमारा सारे वेंडर्स जो है they हम्म agree to upload their firmware to the Windows Update services. हम्म इसमें लेनोवो का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर तुम लेनोवो विंडोज अपडेट सर्विस को अगर अपना फर्मवेयर रिलीज करता है, देन व्हाट इज द यूजेज ऑफ लेनोवो वेंटेज? वो उसको सेल कैसे करेगा? करेक्ट है। अनटिल अनलेस म्यूचुअल ये नहीं आएगा तब तक होगा ही नहीं। ठीक है, थैंक यू। यस। सिमिलरली एचपी का भी जो खुद का जो वो फर्मवेयर एंटरप्राइज सॉल्यूशन है, वो उसको कैसे सेल करेगा अगर वो विंडोज अपडेट सर्विस में अपना फर्मवेयर डाल देता है? तो सब में कमर्शियल्स बात भी थोड़ा होता है। तो दैट इज व्हाई माइक्रोसॉफ्ट का खुद का प्रोडक्ट है सरफेस, सो माइक्रोसॉफ्ट इज एबल टू डिलीवर द फर्मवेयर फॉर सरफेस डिवाइसेस। बट बाकी सारे डिवाइसेस के लिए it can only deliver those drivers which drivers are updated to the Windows Update Service. जो ड्राइवर विंडोज अपडेट सर्विस में मैन्युफैक्चरर नहीं डालता है, वो ड्राइवर अपडेट तुम्हारे डिवाइस में माइक्रोसॉफ्ट नहीं भेज सकता। ठीक है। Yeah, Abhijit, you had something. Please raise. Joy, this is Ramesh. So how, like, if the 0-day patches has been released by Microsoft, so after second, for that we need to use रमेश का the बात right मुझे thing. सुनाई नहीं दे रहा है कि तुम सबको भी सुनाई नहीं दे सेम है मैडम, मुझे भी क्लियर नहीं है। रहा? रमेश थोड़ा जोर से बोलोगे? Joy, regarding the 0-day patches, Joy. So if the Microsoft हाँ, is 0 डे released the 0-day पैचेस। patches after second Tuesday, maybe on after 1 week, how we can handle that? वो कुछ नहीं करना होता है। वेट। एक मिनट। यही वाला है। ठीक है, मैं सिर्फ उसको थोड़ा छोटा करता हूँ। सैट, अच्छा ठीक, संडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है।
आपका वॉइस नहीं आ रहा है जॉय। ये मैंने सिर्फ एक कैलेंडर बनाया। दिस इज 1 2 3 4 5। ये कैलेंडर है और तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में तुमने ये 3 रिंग बना के रखे हो विथ deferral period first ring 0, DP5 and DP10. ठीक है। Now Microsoft releases update every week. Microsoft releases update every week. तो ये फर्स्ट वीक में जो अपडेट निकलता है दैट इज नोन एज ए अपडेट। सेकेंड वीक में जो अपडेट निकलता है दैट इज नोन एज बी अपडेट। थर्ड वीक में सी, डी। फिफ्थ वीक में रेयरली कुछ अपडेट निकलता है, वो नेक्स्ट वीक में निकलता है ए अपडेट। बट बी अपडेट को ये हमेशा ट्यूसडे को निकलते हैं एंड दिस इज नोन एज पैच ट्यूसडे। दिस इज द क्यूमुलेटिव अपडेट। स्पेलिंग का मैकेनिक क्यूमुलेटिव अपडेट का मतलब क्या है? मतलब takes all प्रीवियस three. मंथ का जो सी और डी अपडेट था और इस मंथ का जो ए अपडेट है उसको लेके ये अपडेट बना है। तो दिस वन इज एनफोर्स्ड एंड ओनली दिस अपडेट, यही अपडेट को तुम्हारा ये डेफरल पीरियड कैलकुलेट करता है। बाकी ए सी डी अपडेट्स जो है दोज आर ऑप्शनल्स एंड दोज आर नॉट एनफोर्स्ड। तो यूजर अगर खुद विंडोज अपडेट में चेक करता है तो उसको मिलता है, वो दे कैन डू इट देमसेल्फ, इंस्टॉल देमसेल्फ। बट यही अपडेट को हम लोग टारगेट करते हैं। नाउ अभी समझ लो माइक्रोसॉफ्ट ने ये अपडेट तो रिलीज कर दिया इस महीने का। इस महीने का ये अपडेट उसने माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया, बट इसी महीने माइक्रोसॉफ्ट ने एक 0 डे पैच भी रिलीज किया। समझ लो थर्ड वीक का थर्सडे को उसने एक 0 डे पैच रिलीज किया। 0 डे पैच का आइडेंटिटी ऐसा है कि व्हेन इट इज रिलीज्ड इट इज आल्सो कंसीडर्ड एज द पैच ट्यूसडे अपडेट। तो इस अपडेट पे भी ये सेम डेफरल्स लगेगा। तो ये अगर थर्सडे को रिलीज हुआ तो ये डिवाइसेस को थर्सडे को ही अवेलेबल होगा। बाकी रिंग के डिवाइसेस को 5 दिन बाद अवेलेबल होगा और बाकी डिवाइसेस को 10 दिन बाद अवेलेबल होगा। तो जो डेफरल पीरियड तुम्हारा पैच ट्यूसडे अपडेट के लिए भी इफेक्टिव है, वही डेफरल पीरियड तुम्हारा 0 डे हॉट फिक्स अपडेट के लिए भी अवेलेबल है। इसीलिए ये जब 0 डे अपडेट निकलता है उसको हमको अगर चाहिए कि मेरा सारा डिवाइसेस पे तुरंत के तुरंत इंस्टॉल हो, तो उसको हमको डिप्लॉयमेंट सर्विस का वो एक्सपेडाइटेड अपडेट से डिप्लॉय करना है, बिकॉज एक्सपेडाइटेड अपडेट विल ओवरराइड योर डेफरल पीरियड। समझे? जो एक क्वेश्चन है इसी पे, क्या? एक क्वेश्चन है। हाँ करो। हाँ, मैं मान लो हमने जीरो डेफरल पीरियड किसी पर्टिकुलर ग्रुप्स के डिवाइसेस के लिए सेट किया 10 डेज। तो पैच ट्यूसडे के बाद वो 10 डेज के बाद वो डिवाइसेस को अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन इन केस किसी ने एकदम से बोल दिया कि नहीं, ये लिस्ट ऑफ 2 डिवाइस और ऐड करो इस डेफरल ग्रुप में, तो उन डिवाइसेस और 2 दिन निकल चुके हैं फ्रॉम द रिलीज डेट, तो उनके लिए डेफरल कैसे स्टार्ट होगा फिर? इज इट
10 minus 2 8 days or it'll be 10 days when they get added? नहीं, ये सारे डिवाइस के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और ये सारे डिवाइसेस को अपडेट ऐसा हो सकता है कि डेफरल पीरियड ये डिवाइसेस ना भी माने अगर तुम ऐसे करते हो, क्योंकि तुम जब चेंज करते हो फॉर अ मोमेंट ऑफ टाइम द डिवाइस हैज नो डेफरल पीरियड। फॉर अ सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम जब पॉलिसी चेंज होता है डिवाइस पे, समझ लो कि प्रीवियस डेफरल पीरियड उसका 20 दिन था, उसको अभी तुम डेफरल पीरियड 10 दिन पे ला रहे हो, तो वो वैल्यू जो डेफरल पीरियड जो 20 दिन से 10 दिन का वैल्यू जो रजिस्ट्री में चेंज हो रहा है, फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम उस डिवाइस के पास डेफरल पीरियड 0 होगा। और विंडोज अपडेट एजेंट अगर उस टाइम पे ट्रिगर हो गया तो वो देखेगा मेरे पास कोई डेफरल नहीं है और वो चला जाएगा विंडोज अपडेट सर्विस के पास अपडेट डाउनलोड करने के लिए। इसीलिए ऐसा बहुत टाइम होता है कि बोलते हैं कि मेरे डिवाइस को ये तुम्हारे अपडेट रिंग में होता था ऐसे वो फीचर अपडेट के टाइम इसको ये फीचर अपडेट मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन इसको फीचर अपडेट मिल गया। कैसे मिला? ऐसे मिलता है जब तुम उसका ग्रुपिंग चेंज करते हो। इसी में जो क्वेश्चन है, मतलब वो डिवाइस किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, इट इज अ न्यू डिवाइस आई गॉट, और वो क्वालिटी अपडेट फर्स्ट टाइम मतलब इंट्यून में अभी एनरोल हुआ है बस डिवाइस, और एक ग्रुप ऑलरेडी जिसमें 10 डिवाइसेस हैं जिसका डेफरल पीरियड 10 दिन सेट है, दैट इज फाइन। लेकिन वो फर्स्ट टाइम अभी एनरोल हुआ, मैंने उसको ग्रुप में अभी ऐड किया है और 2 दिन बीत चुके हैं रिलीज होने के बाद, मतलब बैच रिलीज होने के बाद 2 डेज हो गया, तो उसके लिए डेफरल 10 डेज रहेगा फ्रॉम द डे ऑफ नहीं, एडिंग टू द पहले ग्रुप। बात ये है कि डिवाइस तुम उसका अभी के अभी एनरोल कर रहे हो, ठीक है? तुम समझ लो कि पैच ट्यूसडे, यही वाला केस समझ लो कि पैच ट्यूसडे निकल गया और तुम डिवाइस को अभी थर्सडे के दिन तुम इसको प्रोविजन कर रहे हो। डिवाइस को अपडेट रिंग का पॉलिसी डिवाइस सेटअप फेज में लगेगा, तुम उसको डिवाइस ग्रुप में ऐड करोगे ना, तो उसको करेक्ट। डिवाइस सेटअप फेज में रहेगा, तो मतलब डिवाइस अपडेट चेक करना पाएगा नहीं। तो इसके लिए ये फुल प्रूफ है, द न्यू प्रोविजनिंग इसके लिए फुल प्रूफ है, इसको अभी नहीं मिलेगा। तो इसका डेफरल डे क्या हुआ? 10 दिन का हुआ इसका, तो मतलब ये 2 दिन तो चला गया ना इसका, तो ये 10 दिन और 2 दिन क्यों वेट करेगा? 10 दिन तो जब ये रिलीज हुआ तब, ये जो तुम्हारा पैच ट्यूसडे रिलीज हुआ, तुम्हारा डेफरल पीरियड है 10 दिन इससे, मतलब तुम्हारा टाइम इस ग्रुप का कब खत्म होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस दिन को जब आएगा तब सारे डिवाइसेस को अपडेट मिलना चाहिए। करेक्ट। तो ये डिवाइस तुम इधर पे प्रोविजनिंग करो कि इधर पे प्रोविजनिंग करो कि इधर पे प्रोविजनिंग करो, इसको भी अपडेट इसी दिन मिलेगा। ओके, Not from the date of device enrollment, is from the date of the patch was released. अंडरस्टूड। मतलब डिवाइस का एडिशन प्रोविजनिंग से कोई मतलब नहीं, इट इज द डेफरल हाँ, टाइम दैट यू हैव सेट। बट तुम्हारा डिवाइस अगर तुम समझ लो कि ये रिंग है, तुम इस रिंग से इस रिंग पे डिवाइस को मूव कर रहे हो, ग्रुप चेंज कर रहे हो, उस टाइम के प्रॉब्लम होता है। उस टाइम में ये ट्रांजिशन में बहुत टाइम होता है कि डिवाइस के पास कोई वैलिड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, तब जाके वो इधर उधर से जाके अपडेट करके तुम्हारे पास हाजिर हो जाएगा। मतलब वो बोलेगा मालिक मेरे पास तो कुछ नहीं था, मैं आ गया, हो गया, अब तुम समझो। करेक्ट, क्योंकि कई बार हम लोगों ने क्या किया है, अभी माइग्रेशन में कुछ डिवाइसेस को बीच में ऐड किया है और उनके पास अपडेट्स जल्दी चले गए, तो यूजर ने बोला आपका तो डेफरल साइकिल अगर सपोज 10 दिन था, मेरे पास अपडेट 5 दिन में कैसे आ गए? तो यही मेरा क्वेश्चन था, इसीलिए कि इफ आई ऐड द डिवाइस इन बिटवीन साइकिल which is set for 10 days but हाँ, it नहीं, gets it। डेफरल वैसा नहीं है, डिवाइस से डेफरल नहीं है, जब पैच लॉन्च हुआ था तब से डेफरल है। ओके ओके।
और जो है एक चीज है, वो आप जो दिखा रहे थे मुझे सेटिंग्स में, थोड़ा सा एक चीज, कैन यू गो दैट सेटिंग्स जिसमें अपडेट रिंग्स की सेटिंग्स थी? एक मिनट। किधर जाऊं? इसी में कोई भी रिंग में चले जाओ बस, वी जस्ट ऑटो पैच के अलावा वाली, हाँ जो आपने बनाई इसकी सेटिंग्स में। हाँ, इसमें बोला आपने डेफरल पीरियड अगर यू हैव सेट इट फॉर 10 डेज, तो 10 डेज के बाद वो पैच उस पे अवेलेबल होगा, करेक्ट? हम्म और ये जो आपने डेडलाइन अगर सेट करी फॉर एग्जांपल 2 डेज की, अगर आपने डेडलाइन वहां पे सेट करी इन हम्म केस, तो विद इन 2 डेज वो इंस्टॉल करेगा। मतलब हम और पॉलिसी से वही बोल रहे हैं कि 2 दिन के अंदर तुम इसको इंस्टॉल करो। फोर्सफुली, एंड इट विल बी विद इन द दिस एक्टिव आवर्स के बाहर, अगर आपने मेंटेनेंस विंडो डिफाइन कर रखी है हाँ, उसी में इंस्टॉल करेगा। इन केस इट मिसेस द डेडलाइन, तो वो ग्रेस पीरियड में जाएगा फॉर, अगर आपने ग्रेस सेट किया पीरियड है। में जाएगा। और अगर रिबूट आपने नहीं दिया है ऑटो रिबूट, तो वो और रिबूट अगर ग्रेस। तुम्हारा हाँ, और अगर तुम्हारा डेडलाइन और ग्रेस पीरियड दोनों मिस हो गया, तब डिवाइस तुम्हारा ये जो एक्टिव आवर है उसको नहीं मानता है। तब वो अच्छा, कैसे भी करके ट्राई करेगा रिस्टार्ट करके डिवाइस को अपडेट करने का। ओके। ये एक्टिव आवर तुम्हारा तभी माना जाएगा, वैलिड होगा। मतलब ये भी है कि मैं भी रूल्स तभी मानूंगा जब तुम भी रूल्स मानोगे। हम्म। ठीक है? तो मैंने तुमको डेडलाइन दिया, मैंने तुमको ग्रेस दिया, उसके बाद भी तुम अगर अपडेट नहीं किए, तो अब आई डोंट केयर कि मेरे पास क्या सेटिंग्स है, आई विल ट्राई टू गेट द डिवाइस पैच्ड। लेकिन इसमें एक चीज पूछनी थी, ये जो आपका ये मेंटेनेंस लेकिन विंडो तुम्हारा डिफाइन। पूरा नहीं नहीं, ये पूरा डेडलाइन और ग्रेस पीरियड और ये सब कुछ कि आई विल गेट द डिवाइस पैच, ये आई विल गेट द डिवाइस पैच तभी होगा अगर तुम्हारे डिवाइस में फ्री स्पेस है और तुम डिवाइस को वो 8 आवर्स का यूजेस दे रहे हो। वो ठीक है, मतलब वो नहीं तो पैरामीटर्स मेट हो गए मेरे हाँ, सारे। हाँ, लेकिन तो मेरा ये तब कहना जाके है, वो करेगा। मेंटेनेंस विंडो में सिर्फ वो इंस्टॉल करेगा कि रिबूट भी कर देगा अगर उसी टाइम में मिला, या सिर्फ रिबूट नहीं करता है? नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हारा डेडलाइन पे है, ग्रेस पीरियड पे है, डिवाइस रिबूट नहीं करेगा, वो तुमको प्रॉम्प्ट करेगा कि योर ऑर्गेनाइजेशन नीड्स योर डिवाइस टू रिस्टार्ट। हम्म। और तुमको ऑप्शन मिलता है कि रिस्टार्ट नाउ और चूज लेटर। करेक्ट। लेकिन जब तुम्हारा डेडलाइन और ग्रेस पीरियड दोनों खत्म हो गया, तब तुमको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तब वो फोर्सफुली रिबूट करेगा। और वो तुम्हारा रिबूट ऐसा तुमको अच्छा ना भी लग सकता है, वो तुम्हारा एक्टिव आवर्स में भी रिबूट कर सकता है। बट मोस्टली विंडोज ट्राई करता है कि एक्टिव आवर्स में रिबूट ना हो। बट तुमने अगर नहीं माना है, तुमने अगर खुद से, मतलब मेरे पास अपडेट आया है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपडेट एंड रिस्टार्ट करूं या अपडेट एंड शटडाउन करूं, बट मैं नहीं कर रहा हूं, तो उसके बाद वो भी नहीं मानेगा। और वो जो आपने अगर सेट किया है, और मतलब इन केस डेडलाइन और ग्रेस चली गई ना, वी हैव नॉट सेट ऑटो रिबूट बिफोर डेडलाइन, तो वो डेडलाइन और ग्रेस के बाद ही रिबूट करेगा, करेक्ट? मोस्टली आपका जब क्लियर हो हाँ जाएगा। तो हाँ, ये तुम्हारा लेकिन वो इंस्टॉल कर चुका होगा किसी टी टाइम पे। इंस्टॉल कर चुका होगा। हम्म, इंस्टॉल करने के बाद, अपडेट इंस्टॉल करने के बाद डिवाइस जब तक रिस्टार्ट नहीं होता तब तक अपडेट एक्चुअल में इंस्टॉल नहीं होता, मतलब वो कमिट नहीं होता। करेक्ट। ठीक है? तो ये जो ऑटो रिबूट बिफोर डेडलाइन का ऑप्शन है, ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारा डेडलाइन जो तुमने सेट किया है, अगर 2 दिन का डेडलाइन सेट किया है, समझ लो डे 1 में ही तुम्हारा अपडेट इंस्टॉल हो गया, तो वो क्या नेक्स्ट दिन का वेट करेगा, उसके बाद तुमको रिस्टार्ट का ऑप्शन थ्रो करेगा? तो इसको तुम एनेबल करके रखोगे तो जैसे ही तुम्हारा अपडेट इंस्टॉल हो गया, वो तुमको अब ऑप्शन थ्रो कर देगा कि अपडेट इंस्टॉल हो गया है, कि तुम अभी रिस्टार्ट करो। अभी तुम करोगे कि नहीं करोगे फिर तुम्हारे बात है। एक टाइम के बाद तुम्हारे पास और वो ऑप्शन नहीं रहेगा, तुमको करना ही होगा, और तुम नहीं किए तो सिस्टम खुद से कर देगा। डेडलाइन के पहले इफ यू हैव सेट, ठीक है।
नहीं, डेडलाइन के पहले सिस्टम खुद से रिस्टार्ट नहीं करेगा। इसमें लिखा है ना ऑटो रिबूट बिफोर डेडलाइन, अगर हमने यस किया है। ये वर्डिंग गलत है, ये ऑटो रिबूट नहीं, ये वर्डिंग एक्चुअली है प्रो रिस्टार्ट प्रॉम्प्ट टू एंड यूजर बिफोर डेडलाइन। ये माइक्रोसॉफ्ट चेंज करेगा आने वाले टाइम में। मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि ये ऑटो रिबूट कहता है, तो इसका मतलब कि जैसे ही डेडलाइन हिट होगी वो किसी समय भी अब्रप्टली रिबूट मार देगा पैच इंस्टॉल होने ना के ना, बाद। ये है तुम्हारा शो अपडेट प्रॉम्प्ट टू यूजर बिफोर डेडलाइन। ओके, ये चेंज होगा, नेक्स्ट वर्जन में भी चेंज हो सकता है, उसके बाद वाले वर्जन में भी चेंज हो सकते हैं, कब चेंज होगा पता नहीं। लेकिन अगर हम इसको इसके नो करेंगे रिगार्डिंग जो है, तो ये प्रॉम्प्ट फिर क्या फर्क हो जाएगा? इसको अगर तुम नो करोगे तो मतलब डेडलाइन के अंदर तुमको कोई रिस्टार्ट प्रॉम्प्ट नहीं आएगा। ओके, मतलब तुम्हारा, तुम समझ लो ना, तुम अगर 5 दिन का डेडलाइन दिए है लेकिन तुम्हारा अपडेट इंस्टॉल पहला दिन ही हो गया, तो अगर तुम्हारा ये एनेबल्ड है तो तुमको जैसे ही अपडेट इंस्टॉल हो गया तुरंत तुमको रिस्टार्ट प्रॉम्प्ट आ गया। तुमने अगर रिस्टार्ट कर लिया तो तुम्हारा बात खत्म, तुम्हारा डिवाइस अपडेटेड हो गया। तुम्हारा इधर पे मतलब पॉलिसी में भी तुम अगर कॉम्प्लायंस पॉलिसी तुम विंडोज वर्जन के ऊपर बनाते हो तो उसमें भी कंप्लायंट हो गए। बट अंडरस्टूड। अभी अगर समझ लो कि तुमने इसको नो करके रखा है लेकिन तुम्हारा इंस्टॉल पहला दिन ही अपडेट हो गया, फिर भी तुमको रिस्टार्ट प्रॉम्प्ट आएगा नहीं। तुमको वो 5 दिन कंप्लीट होने के बाद ही रिस्टार्ट प्रॉम्प्ट आएगा। तो तुम 5 दिन का बेकार में वेट क्यों करोगे जब तुम्हारा अपडेट हो गया ऑलरेडी। समझे? अंडरस्टूड, मतलब इसको हम यस कर सकते हैं टू मेक मोर हाँ कंप्लायंस के लिए। हाँ, उससे कोई हाँ हाँ। एब्रप्ट रिबूट नहीं होगा, करेक्ट। ना, ठीक है। और बोलो, क्योंकि अपडेट में और कुछ है नहीं। Windows Update for Business is updating for Windows 10 and later. Windows Update for Business deployment services, feature update and quality update and driver updates. But ये Windows ये Update for Business deployment service as well as auto patch, ये दोनों सर्विस को यूज करने के लिए यू विल नीड अ विंडोज और E5 लाइसेंस। मेरा भी इधर पे अगर तुम देखोगे लाइसेंसिंग पे एक ही यूजर पकड़ ले ताकि मैं टेस्ट कर पाऊँ पे। ये तो तुम्हारा मेरा डेवलपर लाइसेंस है जो विदाउट विंडोज एंड ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग आता है। और MVP से हम लोग को लाइसेंस मिलता है बट मैंने कभी उसका यूज किया नहीं है। तो ये मैंने एक अपने लिए टेस्टिंग के लिए ओनली वन लाइसेंस ये मेरा खरीदा हुआ है। ये साल का हमारा कितना 6,000 रुपये जाता है लाइसेंस का। ये परचेस लाइसेंस है ताकि मैं वो डिप्लॉयमेंट सर्विस ऑटो पैच वो सब कुछ टेस्ट कर पाऊँ। और ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून सूट है, ये तुम्हारा ये लाइसेंस किसके लिए है? ये इंटून प्लान जो एक्स्ट्रा, प्लान 2 एक्स्ट्रा के लिए। प्लान 2 एक्स्ट्रा। तो तुम्हारा ये इधर पे आता है प्रिविलेज मैनेजमेंट और वो सब। हाँ, ये एंड पॉइंट प्रिविलेज मैनेजमेंट इसके लिए। बस और कुछ है नहीं। और बोलो कोई क्वेश्चंस?
अच्छा जॉय, आप वो एक बार इंट्यून से कैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं फॉर इन द विंडोज सिस्टम, ये सब कुछ आप दिखाओगे? इंट्यून से कैसे एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं? डिप्लॉय करते हैं इन दी विंडोज सिस्टम। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, जैसे गूगल क्रोम का बहुत वल्नरेबिलिटी आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर मुझको गूगल क्रोमी मुझको अपग्रेड करना है, ठीक है, तो वो सब पॉसिबल है क्या? नहीं, गूगल क्रोम को तुमको अगर डिवाइस में एप्लीकेशन भेजना है, दैट इज पार्ट ऑफ एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट। ना गूगल क्रोम का अगर तुमको अपग्रेड करना है या फिर जो भी करना है, दैट इज देन तुमको वो ADMX इंजेक्ट करना होगा गूगल क्रोम का, एंड उसके अगेंस्ट पे तुमको पॉलिसी बनाना होगा। तो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट तुम कैसे करोगे? यू विल गो टू एप्स। तो Win32 एप्स विंडोज के लिए तुमको दो मिलेगा। एक वी विल डिप्लॉय माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप, ये न्यू टाइप, लीगेसी टाइप अभी यूज नहीं होता, रिकमेंडेड भी नहीं है। एंड विंडोज 32, ये Win32 ऐप यू कैन डिप्लॉय। इसके लिए तुमको खुद को पैकेजिंग करना होगा। लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन इज योर MSI एप्लीकेशंस, बट रिकमेंडेड है इफ यू आर डूइंग Win32 देन डू नॉट डू अ लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन। तो समझ लो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ऐप्स हम क्रिएट करते हैं। सर्च माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, तो इधर पे फिर आप गूगल कैप्स लॉक फिर होगी। गूगल क्रोम मिलता है क्या स्टोर पे? नहीं मिलता है। तो क्रोम एप्लीकेशन को तुमको पैकेज करना होगा। अच्छा, इधर पे जो मिलता है वो दिखा, इधर पे एडोब मिल जाएगा। तो अगर तुमको एडोब एक्रोबैट रीडर DC मिलता है तो तुम इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। ये एप्लीकेशन ऑलरेडी प्री क्रिएटेड है, तुमको जस्ट इसमें डिप्लॉय करना है। रिक्वायर्ड डिप्लॉयमेंट मतलब इंट्यून जाके खुद से इंस्टॉल करेगा। अवेलेबल डिप्लॉयमेंट मतलब एप्लीकेशन सिर्फ कंपनी पोर्टल में अवेलेबल रहेगा, यूजर को जाके खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो तुम यूजर या डिवाइस ग्रुप में कुछ भी डालो, तो उधर पे तुम्हारा ये डिप्लॉय कर देगा। नाउ Win32 एप्लीकेशन है क्या मेरे पास? अच्छा समझ लो, नॉर्मली मैं इसी को लेता हूँ, fiddler setup.exe, इसको लेता हूँ। मैं ये जस्ट बेसिक एक एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन करके दे रहा हूँ, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि ये चलेगा। सो इसको पैकेजिंग करने का यही है कि यू नीड टू हैव अ सोर्स फाइल। तो अगर तुम क्रोम सोच रहे हो तो दैट विल बी द क्रोम exe जो तुम डाउनलोड करोगे। और उसका तुमको दो और बनाना होगा, install.ps1, मतलब तुम CMD भी यूज कर सकते हो या फिर जो भी है, install.ps1। और एक तुम्हारा uninstall.ps1, या फिर तुम अगर CMD कर रहे हो तो CMD, तुम अगर VB स्क्रिप्ट कर रहे हो तो VBS, जो तुम्हारा है। तो ये तुम्हारा फोल्डर है, इसको अभी तुमको Win32 में कन्वर्ट करना है। तो तुम्हारे पास माइक्रोसॉफ्ट ये टूल देता है, स्क्रिप्ट है क्या? हाँ। तो ये Win32 कंटेंट प्रिपरेशन टूल तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट से आता है।
इस टूल को तुमको लॉन्च करना है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल हम दो चीज कर सकते हैं। एक, पावर शेल ओपन करके इस पाथ में आ सकते हैं ताकि हम इस टूल को लॉन्च कर पाए। नहीं तो अगर हम ऑलरेडी इस फोल्डर में है, तो अगर मैं शिफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करूँ तो मुझको ये ऑप्शन मिलता है, ओपन पावर शेल विंडो फ्रॉम हियर। मैं उसको करूंगा तो मेरा पावर शेल जो ओपन हुआ, इधर पे मुझे इसको रन करना है। ये इंट्यून विन ऐप util.exe को रन करना है। इट विल नाउ आस्क मी टू स्पेसिफाई द सोर्स फोल्डर, जिधर पे मैंने एप्लीकेशन का सोर्स रखा है। तो मैंने एप्लीकेशन का सोर्स किधर रखा है, न्यू फोल्डर पे। सो दिस इज माय सोर्स फोल्डर, ये मेरा सोर्स फोल्डर हुआ। और नाउ ये अभी मुझे पूछेगा प्लीज स्पेसिफाई द सेटअप फाइल। मेरा सेटअप फाइल कौन है? सेटअप फाइल इज द install.ps1, ठीक है, नॉट योर exe। क्योंकि इंट्यून मैनेजमेंट एक्सटेंशन तुम्हारा ये install.ps1 को रन करेगा, और install.ps1 ये PowerShell स्क्रिप्ट में तुम अपना कोड दोगे, जो भी कोडिंग करोगे वो उस exe को ट्रिगर करेगा। एंड प्लीज स्पेसिफाई द आउटपुट फोल्डर। सो आउटपुट फोल्डर इधर पे कर लेते हैं, नो। एंड ये तुम्हारा पैकेज क्रिएट हो गया install.intuneWin। इस पैकेज को तुम जाके इंट्यून में अपलोड कर सकते हो एज अ Win32। अभी ऑब्वियसली अपलोड तो हो जाएगा, लेकिन काम नहीं करेगा क्योंकि install.ps1 मेरा ब्लैंक था। बट नॉर्मली एप्लीकेशन तुम इधर से अपडेट करके देन पब्लिशर नेम, देन इंस्टॉल कमांड, वो ये इंस्टॉल कमांड तुमको डिपेंड करता है तुम्हारा CMD है कि तुम्हारा पावरशेल है कि तुम्हारा जो है। नॉर्मली हम लोग वही देते हैं, पावरशेल के केस में मोस्टली हम लोग एग्जीक्यूशन पॉलिसी अनरिस्ट्रिक्टेड उसके बाद डालोगे ना? हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ एक पैकेज। और बैच फाइल के इसमें डायरेक्टली इंस्टॉल कर ले रहे हो तो इंस्टॉल डॉट बैट लिख दोगे, हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे तुम्हारा इंस्टॉल कमांड आता है, PowerShell.exe नो प्रोफाइल एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास फाइल इज द install.ps1, या फिर जो भी तुम्हारा इंस्टॉलर फाइल का नाम था। अनइंस्टॉल कमांड भी सेम है। अगर तुमने एक्चुअल में अनइंस्टॉल डाला है तो देन यू कैन गिव इट, नहीं तो कोई भी जस्ट वैल्यू एंटर करके तुम दे सकते हो, दैट इज योर uninstall.ps1। इंस्टॉलेशन टाइम रिक्वायर्ड, दिस इज द यू डिफाइन कि ये एप्लीकेशन को डिवाइस में इंस्टॉल होने में मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। इफ इट ओवररन्स दिस टाइम देन द इंस्टॉलेशन विल बी डीम्ड एज अ फेलियर। ये ऑप्शन पहले नहीं था, अभी आया है, तो इट्स गुड ऑप्शन। ये अनइंस्टॉल अलाउ अवेलेबल अनइंस्टॉल, ये ऑप्शन भी पहले नहीं था, लेकिन ये ऑप्शन काम तभी करता है अगर तुम्हारे पास एक वर्किंग अनइंस्टॉल फाइल दोगे तो। अगर ये वर्किंग अनइंस्टॉल फाइल नहीं है, सिर्फ एक जिबरिश फाइल है, देन इसका कोई काम नहीं है। इंस्टॉल बिहेवियर, यू गेट टू चूज वेदर द कॉन्टेक्स्ट इज अ सिस्टम कॉन्टेक्स्ट और अ यूजर कॉन्टेक्स्ट। एंड इधर पे रिस्टार्ट बिहेवियर भी तुम चूज कर सकते हो, तो वेदर इंट्यून विल फोर्स अ मैंडेटरी रिस्टार्ट और it may restart, but Intune will try to suppress that. So operating system architecture तुम इधर पे then choose कर सकते हो, whether it's for 32-bit or 64-bit, and the minimum operating system जो
ये एप्लीकेशन को टारगेट करेगा। और भी रिक्वायरमेंट्स तुम इधर पे चेक करवा सकते हो अगर तुमको चाहिए, बट मोस्टली यही दो मैंडेटरी है। एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ डिटेक्शन रूल। तो डिटेक्शन रूल कैन बी बेस्ड ऑन कस्टम स्क्रिप्ट। तुम एक स्क्रिप्ट डिप्लॉय कर सकते हो उसके लिए, नहीं तो मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है तो देन यू गेट टू चूज बिटवीन MSI फाइल, मतलब उसका हैश, फाइल फाइल या फोल्डर, तो पाथ लोकेशन पे तुम डिटेक्ट करवा सकते हो, या फिर रजिस्ट्री लोकेशन पे डिटेक्ट करवाना है तो वो। एंड ठीक है, नॉर्मली मैं अभी फाइल पे ही जाके करता हूँ इसको जस्ट आगे करने के लिए। तो पाथ वो किधर चेक करेगा, मैं आर्बिटरी मैं ये दे रहा हूँ, ठीक है। फाइल और फोल्डर नेम इज test.log and detection method is file or folder exist। तो इस पे खत्म करके डिटेक्शन रूल ऐसे क्रिएट करके देन यू गेट डिपेंडेंसी। अगर ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल होने से पहले किसी और एप्लीकेशन को इंस्टॉल होना पड़ेगा, देन यू कैन चूज दैट एप्लीकेशन एज अ डिपेंडेंसी ऑफ दिस। तो उस टाइम पे क्या होगा, जब तक वो मतलब इधर पे जो एप्लीकेशन तुम सिलेक्ट करते हो वो जब तक इंस्टॉल नहीं होगा तब तक तुम्हारे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होगा। सिमिलरली सुपरसीडेंस का भी एक ऑप्शन है। अगर तुम अपडेट करना चाहते हो एप्लीकेशन का तो देन यू यूज द सुपरसीडेंस। तो लाइक तुम्हारा एडोब ऑलरेडी प्रोडक्शन में तुम्हारा एडोब 17.2 डिप्लॉयड है और अभी तुम्हारा एडोब का 18.4 निकला है सपोजली। तो तुम 18.4 का जब पैकेज किए देन तुम 17.2 का पैकेज में जाके 18.4 को सुपरसीड कर सकते हो। एंड फाइनली तुम्हारा वो असाइनमेंट ही आता है, तुम रिक्वायर्ड या अवेलेबल जो भी असाइनमेंट करना चाहते हो, नेक्स्ट एंड क्रिएट द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन तुम क्रिएट करते हो ऐसे ही एंड डिप्लॉय करते हो तो तुम्हारे डिवाइस पे आता है। और सो जॉय, अगर मुझे M365 एप्स का डिप्लॉयमेंट करना है तो वो हमारे M365 एनवायरनमेंट एप्स में। का कोई पैकेजिंग करना नहीं होता है, वो इधर पे ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इंट्यून तुमको देता है। इट्स अ पॉलिसी। माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्स तुम इधर पे सिलेक्ट करते हो, तुमको इधर पे नेक्स्ट करके जाते हो तो तुम इधर पे कॉन्फ़िगर करना मतलब अगर तुम्हारा कोई कॉन्फ़िगरेशन है तो तुम वो डाल सकते हो इधर पे। ऑफिस ऐप में कौन सा ऐप्स तुमको उधर पे भेजना है, जैसे एक्सेस चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्सेल चाहिए कि नहीं चाहिए, नॉर्मल। और तुम्हारा अदर लाइसेंस तुम असाइन करना चाहते हो कि नहीं, जैसे प्रोजेक्ट या विजियो। देन तुम आर्किटेक्चर 32 बिट या 64 बिट, फाइल फॉर्मेट तुम्हारा कौन सा होना चाहिए वो सब, अपडेट चैनल ऑफिस का तुम्हारा कौन सा होना चाहिए, करंट चैनल या मंथली चैनल या सेमी एनुअल चैनल, वो सब भी तुम इधर पे करके फिर अगर तुम्हारा शेयर्ड डिवाइस है तो शेयर्ड एक्टिवेशन होगा कि नहीं, ये सब करके तुम ये एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। ये ऑलरेडी प्री क्रिएटेड आता है, इसके लिए पैकेजिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो मैं सेमी एनुअल चैनल चूज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेगा वो डिवाइसेस पे। हाँ, ठीक है। बस यही है और कुछ है नहीं। सौरभ जी, सौरभ है कि नहीं है, चला गया। होल्ड पे चले। नहीं, सौरभ को मैं बोलता तुम लोगों को वही कियोस्क का